जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे जो OMR शीट थे उस पे सर्कल्स प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पाए थे। इतनी दूर से आना और फिर वो भूल जाना, तो ये बहुत बड़ा मसला था। Hello, guys. Welcome back to the Pre-Med podcast, where we discuss everything pre-med. My name is Anam Tahir, and I am a second year MBBS student at Dow Medical College and an intern at Medangle Pre-Med. As you know that we discuss everything about MDCAT in our podcast, so today our topic is very, very essential. We're going to discuss the final game day of the MDCAT, where everything is being tested from your knowledge to your nerves and everything in between. So if you are confused, you know that MDCAT is a test that takes place in the entire country on the same day. In this year, we're going to have the test on in the month of September. So as you know that this test is very, very important. It does not only determine your future, but it also determines how well you can handle the pressure of the med school and your future. So we're going to make this very easy for you. और आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, because Medangle is here for you. Today I have a very wonderful speakers, Harim Javed from Sindh Medical College and Muhammad Suleiman Sajid from Allama Iqbal Medical College, joining me to tell you how to tackle the last day, how to take your game day from level here to level out of the box. So thank you, Harim, and thank you, Suleiman, for being here with me. Would you like to introduce yourselves? So let me start with Suleiman. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान साजिद है। मैं इस अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर में इस वक्त पढ़ रहा हूँ। मेरे एमकैट में 185 मार्क्स थे यूएचएस एमकैट के अंदर, और मैं नम्स एमटीकैट 2023 का टॉप स्कोरर था। Okay, Harim, can you introduce yourself? Assalamualaikum everyone, this is me Harim Javed here, a student of first year MBBS from Sindh Medical College. Giving a little introduction info about my MDCAT. So my MDCAT score was 184 out of 200 and my total aggregate was around 91.6. My merit number was 4th in my district, which is Hyderabad, and 2nd position in Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University, Islamabad. Okay, great. Amazing credentials. By the way, both of them are toppers and high scorers of their MDCAT and respective provincial MDCATs as well. So, my first question to both of you is how well before and how many days before the actual test your preparation was done, and what did you do the day before? यानी कि आपने उस दिन क्या किया था जब अगले दिन टेस्ट था, और आपकी कितने दिन पहले टेस्ट की तैयारी हो गई थी मुकम्मल? तो सुलेमान, कैन यू स्टार्ट? मैंने असल में ना 2 हफ्ते पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने उसको इजी लेके चल रहा था, बहुत आराम आराम से कर रहा था क्योंकि टाइम ज़्यादा था। तो मैंने एक एक चीज़ को देखा था कि मैं इजी हर चीज़ को लेके जाऊं, और 6 दिन पहले टेस्ट से मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। फिर मैंने एक दफ़ा उसे रिवाइज किया था और खुद साथ क्वेश्चंस करता रहा था, क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस तो आप खत्म। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो साथ साथ फिर 6 दिनों में मैंने अपनी प्रैक्टिस की और एक दफ़ा रिवीजन साथ की, और एक दिन पहले सिर्फ वो टॉपिक्स किए थे जिनमें मैं वीक था, क्योंकि वही थे कि मैं स्ट्रांग तो सबके होते हैं, कुछ वीक भी पार्ट होता है, तो वीक पार्ट को भी साथ लेके चलना होता है। तो मैंने वीक पार्ट किए थे लास्ट डेज में। Okay, Harim, can you also guide us about that? Okay, so basically I was a repeater. I gave my MDCAT in 2022 and then I couldn't get the C unfortunately, so I gave my MDCAT in 2023 as well. So I had a whole year for the revision, for the practice, and I remember I had completed my syllabus like 2 months before the test. तो मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम था कि जिसमें बैठ के मैं रिविजन कर सकती थी और प्रैक्टिस कर सकती थी। तो आई रिमेंबर लास्ट डे में आई हैड प्रैक्टिस लाइक 2 to 3 FLPs ऑन द OMR शीट, ताकि मुझे वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह का अच्छे से आइडिया हो जाए एंड आई गेट लाइक यूज्ड टू के वो मैं OMR को इजीली फिल कर सकूँ। एंड आई रिमेंबर आई आल्सो डिड लाइक रीडिंग ऑफ बायोलॉजी बुक, बिकॉज हमारे पास सिंध में यूजुअली ये होता है कि हमारे पास बुक लाइन जारी होती हैं। सो इट वाज द काइंड ऑफ अ क्रैमिंग डे। Okay, so the most important thing about the whole MDCAT journey also is very, very important on the very last day. That is practice. दोनों ने बहुत ample practice की और दोनों ने revise किया वो चीज़ें that was weak. So that is basically the summary कि आपने weak चीज़ों पे focus करना है और practice पे focus करना है the day before the MDCAT. Now my very, very important question is what to take to the exam center. हर बच्चा परेशान होता है, हम क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि what are the essential things to carry to the actual day. So Harim, can you like tell us? Yeah, sure.
Okay, so first of all, your admit card and your ID card are like the two of the most important things you have to bring with you because without that आपको entry ही नहीं मिलेगी. Other than that, because हम लोगों को जो examination center होता है उसमें बहुत जल्दी बुला लिया जाता है तो एक ठीक ठाक टाइम होता है जिसमें आपको फॉर्म करनी पड़ती है like before the test. तो उसके लिए I would suggest you should have your own water bottle, your biscuit ताकि chocolates and the few candies ताकि अगर आपका BP low हो रहा है because of the anxiety or because of the nervousness तो वो normal है. Other than that, what I had learned from my past experience of 2022 was कि मेरा OMR sheet और carbon copy was not stick properly. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे जो OMR शीट थे उस पे सर्कल्स प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पाए थे और मैं जब अपनी फीस काउंट कर रही थी तो आई कुडंट गेट द प्रॉपर आंसर कि क्या मेरे कितने मार्क्स हैं. तो आई रिमेंबर मैंने 2023 में ये किया था कि आई टुक अ स्कॉच टेप विद मी, थोड़ा छुपा के लेकर स्टडी गई थी लेकिन फिर ये था कि व्हेन आई गॉट द पेपर आई स्टिक द स्कॉच टेप OMR और कार्बन पेपर पे ताकि वो जो है दिस इज नाउ और ताकि आराम से मेरे जो सर्कल्स हैं वो फिल हो जाए. So yeah, that's it. And yeah, one more thing, your wristwatch is very important. Agreed. So, Suleiman, can you also elaborate on this question? सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने मांगे होते हैं, क्योंकि आपके आईडी कार्ड या बेफॉर्म वगैरह उन्होंने कहा होता है कि साथ लेके आना है, जिससे वेरीफाई वो करते हैं और साथ अपनी रोल नंबर स्लिप होती है. तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स है ये भूल के नहीं जाने, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस देखे थे कि वो बच्चे डॉक्यूमेंट्स लाते हुए भूल गए हैं. तो फिर एक तो होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बनते हैं, तो इतनी दूर से आना और फिर वो भूल जाना, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है. कि ये जरूरी ये है कि घर बैठ के आप 10 मिनट लेट हो जाएं, लेकिन ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे कर लें. और साथ जो जरूरी चीज आपकी रिस्ट वॉच, जो सबसे ज्यादा उस वक्त आपकी साथी होती है, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. टाइम को मैनेज करना होता है तो उसके मुताबिक आपने करना होता है कि भाई मेरे पास 1 घंटा रह गया, इतने में मैंने इतने इतने क्वेश्चंस करके जाने, स्पीड से जाना है. और तीसरा, एक पानी की बोतल, खाने को ज्यादा नहीं लेके जाना, सिर्फ पानी की बोतल ज्यादा जरूरी होती है कि जब आपको कोई एंजाइटी वगैरह या पैनिक हो रहे हो पानी पी लें. ठंडा पानी साथ होगा तो वो आपके जो ब्रेन का प्रेशर होता है ना उसे रिलीज कर देता है. तो अपने आप को पैनिक नहीं होने देना और साथ पानी की बोतल जरूर लेके जानी है. Very well said. दोनों ने बिल्कुल सही advice दी. Being very honest, what I did was basically I carried some chocolates and biscuits वगैरह. ये मैं openly कहती हूँ कि because you're tired and your brain is very much being used, तो you need a lot of glucose, right? It's the basic source of energy for the brain. तो बेहतर होता है कि आप अपने साथ कुछ खाने का जरूर रखें. Like हरीम ने भी कहा और जैसे सुलेमान ने बोला कि your documents they are essential. क्योंकि वो ऐसा वक्त होता है कि यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू मैनेज टाइम, यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम और पहले से थोड़ा सा बैठ जाएं ताकि यू आर रिलैक्स इन द एनवायरनमेंट एंड गेट कंफर्टेबल. एक चीज मैं बोलूंगी कि कैरी सम स्टेशनरी, लाइक कोई एक पेन कोई एक पेंसिल जरूर रखें बिकॉज इन केस द वन दैट यू गेट ओवर देयर इज नॉट कंफर्टेबल, आपसे नहीं काम हो रहा उससे या उसकी निप टूट गई वट, तो आप अपनी चीज भी यूज कर लें ताकि यू आर कंफर्टेबल, राइट? तो बी कंफर्टेबल एज मच एज यू बी से एज मच एज यू कैन. सही है, तो ये बहुत हेल्प आउट करते हैं इन द होल एग्जाम एक्सपीरियंस. सो वेरी वेल सेड. Now, my next question is कि how can candidates manage their time effectively during the test? Because time एक limited ही है और सवाल 200 हैं, but still अगर आप time manage नहीं करेंगे तो आप अच्छा score नहीं कर सकते. तो सुलेमान, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो एडवाइस मैं ये करूंगा कि सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन करें, क्योंकि वो होता है क्रैमिंग वाला. क्योंकि बुक लाइंस आई होती हैं तो वो आप इजीली टिक कर सकते हैं और होता भी सबसे ज्यादा पोर्शन है, 68 MCQs हैं, तो मिनिमम आप उसे 30 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं, इजीली हो जाता है. क्योंकि सारी क्रैमिंग है, कौन सा कोई कोई कहीं पे आपको सोचना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा. बुक लाइंस आती हैं तो वो इजी होता है एक. ठीक है, सबसे पहले आप बायो का पोर्शन करें, फिर आप आए केमिस्ट्री के पोर्शन के ऊपर, आप केमिस्ट्री के पोर्शन को लेके चलें, फिर उसके बाद आप इंग्लिश स्टार्ट करें और एंड पे आप फिजिक्स को लेके जाएं, क्योंकि फिजिक्स में आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी है कई बार, और ना आपके पास उस वक्त कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर भी नहीं है तो उसके बाद आप कोई गलती कर दें तो ये बहुत ज्यादा वहाँ पे एक मसला हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं, क्योंकि आपने हैंड से ही करनी है, कौन सा कोई कैलकुलेटर है. तो जरूरी ये है कि पहले आप बायो करें, फिर केमिस्ट्री पे जाएं, फिर इंग्लिश पे जाएं, फिर फिजिक्स पे जाएं और लास्ट पे लॉजिकल रीजनिंग करें. ये चीज जो मैं बताना चाहूंगा. Okay, so Harim, what would you like to add to that? One thing I usually suggest my juniors कि आप लोग अपने MD कैट से पहले एटलीस्ट OMR शीट पे टेस्ट को FLQs वगैरह को सॉल्व करो along by setting a timer. मैं वो यूजुअली क्या करती थी कि मैं 2 घंटे का टाइमर लगाती थी इंस्टेड ऑफ 3. आई यूज टू सेट अ टाइमर फॉर लाइक 2 आवर्स ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा कितना जल्दी वो हो सकता है और मैं कितनी देर तक कवर कर मतलब कितना टाइम ले रही हूँ.
तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, और इससे मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो भी गई थी और मेरी टाइम मैनेजमेंट की वजह से अच्छी हो गई थी। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आपको रिस्ट वॉच अलाउ नहीं करते, कभी कभार टेस्ट सेंटर में आपसे रिस्ट वॉच नहीं लेते, तो यू डोंट हैव रिस्ट वॉच, यू डोंट नो कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप इस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हो। अदर देन दैट, व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर, तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्योंकि आज इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिसमें आपका लाइक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। कभी भी उस सब्जेक्ट से ना करो फिर जो आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि वैसे ही वो मुश्किल है, आप उसको देखोगे और आप पैनिक कर जाओगे, और जो आते भी होंगे ना क्वेश्चन वो आप भूल जाते हो। तो मोस्टली जो प्री मैथ मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायो आसान लगती है, तो गो फॉर इट, बायो से स्टार्ट करें एंड देन वट एवर सब्जेक्ट इज इजी फॉर यू, गो फॉर इट। ओके, सो वेरी वेल सेड एंड बिल्कुल सही एडवाइस दिया आप दोनों ने। लाइक सुलेमान ने तो एक पूरा ऑर्डर बता दिया एंड दैट इज द ऑर्डर आई फॉलोड एज वेल। मैंने बायो किया था, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, बिकॉज वी ऑल नो इट टेक्स द मोस्ट टाइम। वी नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव एंड फ्रेश व्हेन यू डू दैट, राइट? अगर आपका दिमाग बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन में होगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इफेक्टिवली, राइट? इसी तरीके से हरीम ने कहा कि वो प्रैक्टिस करती थी, ना कि 3 घंटे की बल्कि 2 घंटे की। तो इससे क्या होता था, जब अगर एक्चुअल टेस्ट में वो 2.5 घंटे में भी टेस्ट करें तो उनके पास अभी 1 घंटा होगा टू रीच इट। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल एडवाइस एंड ये हर बच्चा अगर फॉलो करेगा तो वो टाइम में क्या, टाइम से पहले ही अच्छा टेस्ट कर लेगा। सो बहुत अच्छी एडवाइस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट कैन हेल्प कैंडिडेट स्टे काम एंड फोकस ड्यूरिंग द टेस्ट? बिकॉज एक बहुत आप पैशन में भी होते हैं, टेंशन में भी होते हैं, कितनी सी सीट्स हैं, क्या होगा, रश होता है, गर्मी होती है एंड व्हाट नॉट, राइट? तो फोकस कैसे रहें, इसके बारे में हरीम आप क्या बोलना चाहेंगे? ओके, सो व्हाट आई हैव यूजुअली ऑब्जर्व इज कि बच्चा में कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना, बच्चा कितना ही एक्सट्रोवर्ट क्यों ना हो, लेकिन व्हेन वो इतना लंबा इतना क्राउड देखता है, लाइक वेयर लाइक देयर आर लाइक अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स और 30,000 स्टूडेंट्स, तो वो क्राउड को देख के वैसे ही पैनिक कर जाता है या वैसे ही वो नर्वस हो जाता है। तो इफ यू आर द पर्सन जिसको इस तरीके की एंजाइटी या फिर लोगों को देख कर टेंशन होती है या डर होता है या एंजाइटी हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप साइड पर बैठो, अपने आप को मतलब थिंक दैट यू हैव डन एवरीथिंग, you have given your best, you have sacrificed everything just because of this test। तो आपको सब आता है, ये ना सोचो कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो इनमें से किस किस का एडमिशन होगा, सीट्स इतनी कम है, एज की सीट्स बहुत कम होती हैं, वेयर एज स्टूडेंट्स इतने सारे होते हैं। तो ये ना सोचो, बल्कि अल्लाह पे यकीन रखो। और व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं सिर्फ पढ़ती थी, मैं नहीं देखती थी मेरे सराउंडिंग में कौन बैठा हुआ है, मैं सिर्फ दुआएं वगैरह पढ़ी हुई थी जो मेरे दिमाग में आ रही होती थी, आई यूज्ड टू लाइक रिसाइट देम एंड दैट। ओके सुलेमान, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कई बार ये इंसानी दिमाग ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको आता होता है लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पैनिक नहीं होना सबसे पहले, ईज़ी रहें। क्योंकि एक क्वेश्चन के अलावा 199 और क्वेश्चंस भी हैं उधर, एक के लिए आप बाकी नहीं गलत कर देंगे कि उस पे लगे रहें, उसको ही लगाने में लग जाएं कि मैंने इसको सही करना है, उसको छोड़ दें, एंड पे रखें उसे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं होता, हमें लगता है हमें नहीं आता, लेकिन हम पढ़ते जाते हैं तो बार बार दिमाग चलने लग जाता है, तो वो हम हमारे जहन में आ जाता है, तो उसे एंड के लिए बचा लें। और पैनिक नहीं होना, पैनिक होने से बचने के लिए ज़रूरी है कि साथ साथ अपना पानी पीते रहें, और कोई अगर दुरूद शरीफ आता है तो वो पढ़ते रहें। आपका बीपी डाउन हो जाएगा, जैसे ही बीपी डाउन होगा तो आपका ज़हन चलने लग जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल उस वक्त बहुत हाई हुआ होता है बच्चों का। तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उस वक्त अपने आप को पैनिक ना होने दें। जब पैनिक हुए, नर्व्स की गेम होती है, कोई ये एग्जाम आपकी उसकी गेम नहीं है नॉलेज की, वो आपके एग्जामिनर माइंड को एग्जामिन कर रहा होता है, ना कि आपके नॉलेज को। ज़्यादा वो माइंड को एग्जामिन करता है, तो आता सबको होता है, वो 3,000 वही बचता है जो नर्व्स के अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। तो यही होगा कि नर्व्स के ऊपर काबू रखे और अपने आप को पैनिक ना होने दे। ओके, सो बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि इट्स बेसिकली द गेम ऑफ नर्व्स। जो बंदा अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर लेगा, जो स्टूडेंट उस वक्त हैंडल कर लेगा हाई प्रेशर सिचुएशन को, वही आगे अच्छे से जा पाएगा। तो सुलेमान ने कहा पानी पिए, हरीम ने कहा दुआएं पढ़ें, दूसरों पे फोकस नहीं करें, उस वक्त आपने फोकस करना है अपनी प्रेपरेशन पे, अपने अपनी सारा जो भी मेंटल आपका स्टेट है उस पर कंट्रोल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन फोकसिंग ऑन द पीपल अराउंड यू। उससे होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और पेपर ही खराब होगा। तो बहुत अच्छी एडवाइस थी दोनों की तरफ से। Now my question is, how can you effectively tackle difficult questions and avoid common mistakes during the test? यानी कि हो सकता है कोई ऐसे सवाल हो जो आप बोलें कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, या कोई ऐसे सवाल हो या आप कहें कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? हरीम, कैन यू आंसर? Yeah, okay. So basically questions जो भी आएंगे, मे बी पॉसिबल यू माइट गेट अ क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके पास अपने सिलेबस में आएंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट योर क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं।
लेकिन the thing is कि as in a recent question, Suleiman said कि examiner is playing with our nerves, with our mind. तो वो इस तरीके से ही होंगे द क्वेश्चन अगर आप उसको थॉरली रीड करोगे उस क्वेश्चन को इफ यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा व्हाट द क्वेश्चनर इज आस्किंग यू और समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन इटसेल्फ या फिर जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं इटसेल्फ विल टेल यू द करेक्ट आंसर अगर आप उसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो बिकॉज एलिमिनेशन मेथड से होता है कि आपको जो पता हो कि भाई ये दो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते जस्ट एलिमिनेट देम एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गेटिंग टू ऑप्शंस उसमें से आपको करना पड़ेगा वो भी आपको पता चल ही जाता है तो थॉरली उस क्वेश्चन को रीड दो तो इजीली आई गेस वो टैकल कर सकते ओके, तो वेरी नाइस। सुलेमान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आउट ऑफ सिलेबस है उसे लास्ट पे रखा जाए ताकि वो हमारे जो है ना हमारा एक तो टाइम बचेगा और मैं जो टाइम के अंदर हम क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं वो हो जाए और लास्ट पे उसे मैक्सिमम टाइम देके उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन देखिए ना हमने वो पढ़ा होता है, ठीक है, बस उसे रिवाइज नहीं किया होता। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस है या मुश्किल है तो ये है कि उसको आराम से पढ़ा जाए, एंड लाइन तक उसे पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जामिनर एंड टाइम पे ना कोई चेंज करता है अपने क्वेश्चन के अंदर। एंड पे वो नॉट लिख देगा या फिर वो ऑल ऑफ दीज लिख देगा, इस तरह करके वो तंग करता है। तो उसे एंड पे रखें और अगर वो नहीं आ रहा उसे लास्ट पे रख जाएं। तो ये होता है कि अगर लास्ट पे चला गया ना तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 200 है उनमें एक नहीं आता आपको छोड़ दें, 199 तो पड़े हैं ना, उसमें से 180 प्लस आप स्कोर कर लें, आपका एडमिशन पक्का है, उसको 1 को छोड़ें, आप एंड पे रखें। एंड पे वो किसी ना किसी तरीके से आपके पास टाइम होगा, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी तो आप वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो वेरी वेल सेड। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम कैसे काम रह सकते हैं, कैसे और किस तरीके से ऐसी मिस्टेक्स जो हैं उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, 200 मार्क्स हैं, अगर आपके 1-2 मार्क्स एमसीक्यू मिस भी हो जाते हैं तो दैट इज ओके। लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो दोनों ने बहुत पॉजिटिव रहने को बेसिकली आपको बोला है, तो आप सब पॉजिटिव रहें ताकि जो बाकी एमसीक्यूज हैं वो खराब नहीं हो। बिकॉज व्हाट हैपेंस मोस्टली विद अस इज दैट एक एमसीक्यू खराब होता है, अगर 20 हम खराब करते हैं जस्ट बिकॉज वी आर थिंकिंग एंड वी आर वरिंग अबाउट द रेस्ट, राइट? तो उसको एंड में रख दें तो वो टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और उसके अलावा एक चीज दैट इज एन एडेड एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज, अगर कोई चीज छोड़ें तो मेक श्योर यू रिमेंबर टू मार्क इट इन द एंड और यू मार्क इट करेक्टली। तो ये होता है आपका ऑर्डर सारा खराब हो जाएगा और आपके 200 के आपके 10 मार्क्स भी नहीं आएंगे अगर आप वो एक ऑर्डर मिसप्लेस कर देंगे। सो मेक श्योर यू आर वेरी विजिलेंट, यू आर एक्टिव एंड योर नर्व्स एंड योर सेंसेस आर वर्किंग एट द बेस्ट, राइट? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। With that, we are going towards the end of our podcast. So the last question is that, looking back at your journey and whatever you have gone through, is there something you would like to change? If that is something, तो आप बताएं। और दूसरी बात, लास्ट चीज वो ये कि do you have any advice for the juniors that are sitting in the MDCAT 2024? उनके लिए कोई essential advice, anything you would like to give? तो हरीम, आप कहना चाहेंगी कुछ? Okay, so okay, I have given MDCAT twice, like in 2022 and 2023. So there were like certain mistakes which I did in 2022 कि मैं पहले क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था उसको देख के ही मैं पैनिक कर गई थी एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द रीजन कि इसकी वजह से मैंने बाकी क्वेश्चंस भी जो मुझे आ रहे होते थे वो भी मैं या तो टाइम ले रही थी उनको सोचने में या फिर मैं उनको गलत कर रही थी। तो माय एडवाइस टू माय जूनियर्स वुड बी कि जो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना पहले उनको सॉल्व करो और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा या फिर आपको पता है आपको दिमाग में नहीं आ रहा बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे रिकॉल नहीं हो पाती हैं तो उसको सेव देम फॉर द एंड उनको बाद में कर लेना। और बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन चंद 10-15 क्वेश्चन की वजह से आप बाकी अपने 180 या 190 मार्क्स तो नहीं गवा सकते। तो इट्स बेटर कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले सॉल्व कर लो और जो मुश्किल लग रहे हैं या फिर जो कंफ्यूजिंग है या जो आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है इट्स बेटर टू सेव देम फॉर द एंड। एंड अनदर थिंग वुड बी कि अगर इन केस आपका एडमिशन नहीं हो रहा गॉड फॉरबिड आपने बहुत मेहनत की बहुत कुछ किया लेकिन आपका नहीं हो रहा एडमिशन तो डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है बिकॉज व्हेन आई कुडंट गेट द सीट इन 2022 I had like a severe depression and that was a time that was literally very horrible. तो आई वुड नेवर सजेस्ट समवन कि आप अपनी इन चीज़ों को अपने नर्व्स पे ले लो और उसकी वजह से अपनी बाकी मेंटल हेल्थ खराब करो बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली फील्ड व्हेन आई से इट आई मीन इट कि हम लोग बहुत भाग रहे होते हैं इस फील्ड के लिए कि हाँ एमबीबीएस करना है डॉक्टर बनना है। द मेन पर्पज एज सुलेमान द मेन पर्पज इज दैट आप एक अच्छा इंसान बन रहे हो आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ आप उसमें अपना बेस्ट दो आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो दिस इज नॉट द ओनली फील्ड। तो उसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ खराब कभी भी मत कीजिएगा। तो या दैट्स इट।
ओके, थैंक यू हरीम। उसके अलावा सुलेमान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? मैं जूनियर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप जाएँ अपने एमकैट के लिए, तो ये है कि उस रात ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए होता है। एक तो टेंशन बहुत होती है, टेंशन तो होती है, आगे भी और भी ज़्यादा मिलेगी जब ये इंशाल्लाह इधर आएँगे। तो ये है कि पहले पूरी रात एक 8 घंटे की स्लीप ले ली जाए, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। और दूसरा ये है कि अगर मैं पास में जाऊँ, तो पास में जाके तो सबसे पहला काम ये है कि की को सुधारता कि की सही हो, कभी गलत ना आए, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन दे देती है। और ये है कि जिनका नहीं होता उनके लिए ये है कि इसके आगे ज़िंदगी और भी है, टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ने हो सकता है कि आपसे उनसे अच्छे काम करवाने हो। डॉक्टर बनना मकसद नहीं होता, आपके लिए मकसद आपकी नेशन को ठीक करना है, उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। सिविल सर्विसेज का रास्ता है, आप लॉ में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, तो बहुत से रास्ते हैं। तो कभी इसलिए ना पढ़ें कि आपने डॉक्टर बनना है, इसलिए पढ़ें कि आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे, या अपने कंट्री के लिए, नेशन के लिए क्या करना चाहेंगे। तो इसलिए पढ़ें, ना कि अपने इसलिए पढ़ें कि आपने बड़ा होके वहाँ पे इज्जत कमानी है, ये करना है, वो करना है, इसलिए नहीं, अपनी कंट्री की प्राइड के लिए पढ़ें। ओके, सो ग्रेट एडवाइस बोथ फ्रॉम हरीम एंड सुलेमान। दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी रिगार्डिंग मी, वेरी पॉजिटिव। इवन आफ्टर द टेस्ट, खराब हो अच्छा हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलें तो आप खुश रहेंगे एंड यू विल बी गोइंग थ्रू अ गुड जर्नी, बिकॉज आफ्टर द एमडी कार्ड यू हैव सम टाइम एंड यू बेसिकली फ्री। तो अगर आप उस टेंशन में गुजारेंगे तो ओवरऑल आपका साल इतना अच्छा नहीं गुजरेगा, राइट? सो बोथ ऑफ देम सेड दैट द मेन पर्पस, the reason you should give your MD card is because you want to become a really good human being, helping others around you, right? So first of all, thank you so much for your advice and sharing the valuable insights with our listeners. And I'm pretty sure, yeah, the juniors will love listening to it, right? Okay, thank you so much both Hareem and Suleiman for sharing your experiences and your valuable insights and advices for your juniors. I'm pretty sure each of the junior that will watch this podcast will surely enjoy and also learn a lot of things, right? Suleiman, would you like to मैं say some कुछ कहना parting चाहता words? हूँ। Sure, जी go जी, ahead. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी उनसे ना एक रिक्वेस्ट होगी, या एक बड़े भाई की नसीहत समझ लें, कि जैसे आप लोगों का एमकेट होता है, तो जिनका एडमिशन उनको कंफर्म पता चल जाता है उसके बाद कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिनका कंफर्म हो जाएगा, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना टाइम हो सकता है ना अपनी फैमिली के साथ गुजारें। बाद में ये टाइम बहुत याद आने वाला है। जो टेंशनें यहाँ पे मिलती हैं ना, वो आपको बहुत कुछ याद दिलाएंगी। तो ये एक नसीहत है कि अपना जितना टाइम हो सकता है, 2-3 माह होंगे, अपनी फैमिली के साथ गुजारें और चिल करें। कोई और किसी तरफ जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लग पता जाएगा। तो जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें, और जिनका नहीं हुआ, उनके लिए है कि वो दुनिया आगे और भी है। अपने आप को ईज़ी रखें, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर आपकी फैमिली इजाज़त देती है तो नेक्स्ट ईयर रिपीट कर लें, कोई बुरी बात नहीं। मैंने भी रिपीट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर नम्स में टॉप स्कोरर रहा हूँ। तो अल्लाह आपके लिए बहुत से रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह ने हर एक के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। अब उन्होंने लिखा था कि पहले साल नहीं होगा, लेकिन दूसरे साल टॉप स्कोरर जैसी नेमत से नवाज़ा। तो उनके लिए यही एडवाइस होगी कि वो अपने आप को ईज़ी रखें और कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हम हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अल्लाह ने बहुत अच्छा मुकाम दिया है, उसका शुक्र अदा करें। और एक और अल्लाह आपके लिए एक नया रास्ता देना दिखाना चाह रहा होगा। आप लोगों को आपकी गलतियों से आशना करना चाह रहा होगा। तो एक सबक होता है, उस सबक को याद रखें और मेहनत करें, खुश रहें, आबाद रहें। Thank you, Suleiman. I really want to say one more thing here. Currently, I have talked to so many MD cut aspirants जो साल MD cut देंगे, and they are like very confused, और they are like अभी से वो लोग nervous हो रहे हैं कि कैसे करना है, last moments में क्या करना है, ना हुआ तो फिर क्या करेंगे। So I really want to say one thing here कि देखो, you have done your best, you have given your best, आपने अपनी हर event, हर चीज sacrifice कर दी for this test, for getting the seat। तो आपका काम था मेहनत करना, यू डिड दैट। अदर दैन दैट बाकी सारी चीजें आपकी किस्मत पे। जब आप पेंटाल पर या एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो, वहां पर बैठ के आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी लक काम करती है। वहां पर अगर 30,000 बच्चे हैं या 20,000 बच्चे हैं, तो वो सब पढ़ कर आए होते हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं।
तो लेकिन उनमें से एडमिशन चंद का होता है, और उन चंद का भी आई फील लाइक व्हाट आई हैव फील के उस टाइम पे आपका लक मैटर कर रही होती है रादर देन योर नॉलेज। तो जाने से पहले बहुत दुआएं करके जाएं। माय टीचर यूज टू से मी कि आप लोग तीन चार सूरतें हैं, तो सूरह यासीन शरीफ और सूरह रहमान, ये कुछ सूरतें थी विच माय टीचर एडवाइस मी कि ये पढ़ के जाना, और नफल पढ़ के जाना, कि मतलब नमाज हाजिर जिसको कहते हैं, कि वो पढ़ के जाओ, और मतलब आज की अल्लाह के आपको क्यों, टेल हिम व्हाई यू वांट दिस फील्ड। एंड और गॉड फॉरबिड अगर आपको नहीं हो रहा है इस एडमिशन इस साल, तो दिस इज अगेन नॉट द लास्ट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। बहुत सारी अच्छी फील्ड्स मौजूद हैं, एक्सप्लोर न्यू फील्ड्स। अगर इसी में ही आना है तो वापस मेहनत करो, हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपके लिए कोई अच्छी चीज रखी होती है जो आपको बहुत अनएक्सपेक्टेडली वे में मिलती है। जब मेरा 2022 में नहीं हुआ था तो आई वाज लाइक, मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई थी। मैंने बहुत शिकवे किए थे, बहुत कहा था कि मुझे क्यों नहीं हुआ, वाई मी ओनली, बाकियों को तो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई फील लाइक ये सारी चीजें इस तरीके के लोगों के दिमाग में आ रही होती हैं। तो और आपको नहीं पता होता आपके साथ अल्लाह ताला आगे कितना अच्छा आपको नवाज रहा है, उस एक चीज को लेके आपको किससे ज्यादा बेहतरीन चीज दे रहा है। तो हमेशा ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर क्रिएटर, एंड दैट्स इट। Okay, so very well said, and both of you gave a perfect concluding remark was basically कि आप अपनी किस्मत पे भरोसा रखें, अल्लाह मियाँ की ज़ात पे भरोसा रखें, because your creator is basically who will determine your future in the best way possible, right? तो आप लोग का बहुत पॉजिटिव मैसेज था कि रिपीट करना कोई बुराई नहीं होती, और रिपीट करने में भी कोई वो मसला नहीं, और कोई और फील्ड में जाना भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज देयर सो मच मोर टू एक्सप्लोर इन दिस वर्ल्ड देन जस्ट MBBS, right? So as this podcast, and I would like to thank our listeners for being here, for listening to our podcast. And if you like such content, make sure to share this podcast with your fellow aspirants and subscribe to our channel so that you can tune in and listen to more podcasts in the future. Till next time, best of luck for MDCAT 2024. Allah Hafiz.